global advertiser for innovative outdoor solutions. इकबाल बख्श कहाँ है? इकबाल ये फिल्म बना रहे हैं, इकबाल भी नहीं आए क्या? अच्छा, इकबाल भी नहीं आए तो सब लोग आ गए, अवधेश मिश्रा, एवरीबॉडी, सब लोग, अब सबको एक साथ, एक सबका नाम नहीं लेंगे, सबको हर हर महादेव, सब लोगों को कल महाशिवरात्रि है, आप लोग एकदम महादेव आप उनको बहुत खुश रखें और बहुत अच्छा दिन है ये, एक बड़ी फिल्म की शुरुआत, सब लोग आए हैं, आप लोगों को थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को, जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। Thank you for your best wishes, beautiful wishes. We are extremely overwhelmed. Ladies and gentlemen, let's all put our hands together for this beautiful evening. And this is the beginning of the evening. We would request you, sir, to say our guest for now.
challenges, and we are super excited about this. Must mention this, ladies and gentlemen, that Veer Yodha Mahabali is the most expensive film. और इससे मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहूँगी. Friends and friends from the media, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया that you are here, all the friends from the media. Thank you so much. Veer Yodha Mahabali is a grand visual experience. It looks like a gorgeous picture postcard. Changed the dynamic of cinema with its seamless blend of good storytelling and marvelous poetic visuals. Visually breathtaking and technically super, it's a masterful stroke to use the best visual effects ever seen in filmmaking. In a story laced with passion, power and betrayal. Veer Yodha Mahabali is stunning, magnificent, towering in scale and mounting a humongous blitzkrieg of entertainment that will take you into a different world altogether. Trust me, it shall be tough to match its mesmerizing mix of special effects and content. We are extremely honored to have all our esteemed guests this evening. And now, before we do the unveiling, ladies and gentlemen, it's time for us to meet the director of the film, who is known as the captain of the ship. Together for the director of the film, Veer Yodha Mahabali, Mr. Iqbal Baksh. Can we please have you here, sir? Mr. Iqbal Baksh. superstar and the protagonist of the film, Mr. Dinesh Lal Yadav Niruva, who shall debut his Bollywood film with our film, that is Veer Yodha
actress for the film. It's truly an honor to have you here, ma'am. And now, we did love to request the producer of the film and Mr. Dinesh. Everyone is super excited कि वो आपसे कुछ सुने और आपका इंतजार हो रहा था इतने वक्त से. So can we all hear it for one and only, ladies and gentlemen, the superstar Mr. Dinesh Lal Yadav Niruva. And sir, हम बेहद खुश हैं that it's your Bollywood debut with this, and everyone loves you so much. How do you feel? How is this feeling? आज अभी हो रहा है the first look of this magnificent film. Please tell us something about how you feel. कैसे लग रहा है आपको? थैंक यू आप सभी को. और मैंने सुना था ऐसा कि 2018 जो वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ लेके आएगा मैं ऐसा सोचा नहीं था. तो सचमुच मैं बहुत गर्वान्वित हूँ, बहुत ही खुश हूँ और मुझे लग रहा है ये प्रभु की असीम कृपा है, आप सबका आशीर्वाद प्यार है कि मुझे जब पहली बार मौका मिल रहा है हिंदी फिल्म करने का, तो एक ऐसी फिल्म से जो 5 भाषाओं में बन रही है, तो मेरे कई सारे सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं. तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्यार दें, क्योंकि जब मैं आया था एक गायक से नायक बनने, तब भी किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, पर आपके आशीर्वाद प्यार में मुझे यहाँ पे टिकने में, कामयाब होने में सहायता दिया. तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज इतना सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए आप लोग कि ये जो शुरुआत हो रही है ये बहुत अच्छी हो और इसमें भी सफलता मिले. थैंक यू सो मच. वो कहते हैं ना शुरुआत ही इतनी अमेजिंग हो और द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म में ही इतना शानदार लैविश इवेंट हो, तो आपके दिल में कुछ हो रहा है? इट इज द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म, बट कुछ हो रहा है आज, सब लोग देखेंगे आज. एंड हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया हैं जो सुपर एक्साइटेड है आज का फर्स्ट लुक देखने के लिए. सो आर यू रिलैक्स्ड, आर यू नर्वस कि कुछ हो रहा है दिल में? बहुत कुछ हो रहा है. और एक जैसा आपने पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आदमी खुश होता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है. तो मैं घर से जब निकल रहा था मेरी छाती इतनी चौड़ी हो गई कि मेरी बटन टूट गई और मैं लेट भी इसीलिए हो गया. दोबारा मुझे दुकान में जाके ठीक करवाना पड़ा ये बटन. तो आप समझ सकती हैं मैं कितना खुश हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ. So awesome, इतना beautiful description तो किसी ने भी नहीं किया. That's absolutely wonderful and we are so happy आपको इतना super delighted देखकर. Thank you so much, ladies and gentlemen. हमारे साथ है a very gorgeous and stunning, beautiful actress and वो बिल्कुल पीची और पिंकी लग रही है और उनके दिल में तो काफी हलचल हो रही है हमें लग भी रहा है और उनकी मुस्कुराहट का क्या कहना है. Ladies and gentlemen, we will now have to listen a few words from Miss Amrapali Dubey. How are you feeling this evening, ma'am? Good evening, everybody. आप सभी लोगों को नमस्कार and thank you so much. Even you're looking very stunning. और I think this is like a dream come true. हम actors बहुत मेहनत करते हैं and जब बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिलता है किसी को, तो इट इज़ सच अ बिग थिंग. मैं अपने आप को आज एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी खुश हूँ. मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए इस फिल्म को और हम लोग ने जो सोचा है उससे बहुत बेहतर फिल्म हम बना पाए. बस यही कामना करते हैं. कौशल भाई क्या कर रहे हैं? Ladies and gentlemen, we are truly honored to have our director with us, Mr. Iqbal Baksh. Can we please have you here, Mr. Iqbal Baksh? Yes. ओए Thank you. बहुत शुक्रिया. यहाँ पे आजा, पीछे यहाँ पे. ले पूरा फ्रेम. The very amazing director, Mr.
we are truly honored. We request you to come to the center, थोड़ा center में, and thank you. And हम request करेंगे हमारे director से कि आप कुछ शब्द कहिए सब please. हालांकि आप अभी आए हैं, but we request you to kindly speak a few words because we are so excited, इस फिल्म को लेकर और इसका first look देखने के लिए. तो हम देखें उससे पहले आप कुछ प्लीज अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहिए. शुक्रिया. मैं यहाँ आए हुए सारे दोस्तों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ. आप लोग आए और हमारे इस फंक्शन में हमारा साथ दिया. आज हम लोग वीर योद्धा महाबली का फर्स्ट लुक मूवी का किस तरह से बना रहे हैं वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं. मैं देर से आया, इसकी बहुत बड़ी वजह है एक्चुअली. सबसे पहले तो मैं रत्नाकर जी, नागेश जी, मुन्ना भाई, मेरे सारे दोस्त, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उनका साथ रहा मेरे साथ. और मैं क्या बोलूँ, अभी दिनेश जी बात करेंगे आपसे. इस फिल्म को बहुत भूल चुके हैं आप, तो अभी रमेश जी बात करेंगे. नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म के लिए शुरुआत की है और आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है और कोशिश कर रहे हैं. निर्मला जी ने जो सपोर्ट की, हम पांच भाषाओं में ये फिल्म बना रहे हैं और एक अच्छा कदम जो बढ़ा रहे हैं उसमें आप सबका साथ है और आप सबका आशीर्वाद हमेशा चाहिए. धन्यवाद. Thank you very much, sir, for your kind words. And ladies and gentlemen, please put your hands together for Miss Vanshika Chaudhary. Can we please have you here on stage? Miss Vanshika Chaudhary, who's also acting in the film. आपको बुलाना चाहेंगे हम मंच पर. Are you around, please? Well, we request you all for a photo op. Smiles and hearty congratulations to all of you. We are here to unveil the first look of the film, Veer Yoddha Mahabali. And it's time for us to meet the entire crew and cast. Please can we have all the dice? Deepak Bhatia, Ayaz Khan, Sikandar Khan, Amrit Singh, Som Yadav, Rajiv Vashisht, Amjad Qureshi, Nagesh Mishra or Sushil Singh. Can you please have you here on stage? The entire crew, come on. The entire force and captain of the ship है इकबाल जी, हमारे डायरेक्टर, और उनकी पूरी फोर्स और टीम यहाँ पर है. We request you all to kindly strike a pose for our press and media. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे to kindly strike a pose. We have with us Mr. Amitabh Gunjan, हम जिनका felicitation करना चाहेंगे. So just after this photo op, we would love to felicitate you. We request you with a bouquet. Thank you, sir. It's to me an honor. Thank you, sir, for your humble presence, sir. बहुत शुक्रिया. Sir, we request you to strike a pose. We would also love to invite the co-producer, ladies and gentlemen, Shankar Gupta, जिन्हें हम दादा कहते हैं प्यार से, project designer Sunny Shah, legal advisor Nagesh Mishra, music by Abid Jamal, Madhu Krishna for the music. Can we also have lyrics by Karthik? Writer is Sanjay Bardwaj, जिन्हें हम लंकेश बुलाते हैं. हमारे DOP हैं Dinesh R. Patil. We have our DOP Dinesh R. Patel. Action is by Javed R. Sheikh. Choreographer है Dilip Mistry. Ricky Gupta. आप सभी लोगों को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे. ये है हमारे strength of the film, the entire cast and crew of the film. Mr. Ricky Gupta, Mr. Ram Devan. We would also love to have the editor of the film, Kunal Prabhu, Associate Director Ravikant Gupta, Santosh Pal, our costume designer Praveen Jadhav, art by Manish Shirke, VFX
Animation Studio, production controller Aslam Sheikh ji, can we please have him here? Manch par aa jaiye please. Gurpreet Singh ji, Bim ji, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं आलोक श्री और हमारे पब्लिसिटी डिजाइनर हैं ग्लोबल डेस्क अजय. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे मीडिया कंसल्टेंट हैं मिस पारुल चावला और दिस इवेंट इज मैनेज्ड बाय रूबी शाह. Also the production and setup is by Ruby Shah. Can we please have Mr. Ratnakar on the stage? Mr. Ratnakar, can we kindly have you here on stage? Ladies and gentlemen, this is the entire cast and crew of Veer Yoga Mahabali. Let's hear it for all of them. Hearty congratulations to all your hard work and best wishes to all of you. Thank you very much, friends from the media. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yoga Mahabali. Ladies and gentlemen, we are extremely excited to announce Lakshmi Ganpati Films Private Limited presents Veer Yoga Mahabali, and now is the unveiling. Can I please request all our dignitaries to come on one side because we shall now have the unveiling. हमारे audio visual हम देखेंगे अब. थोड़ा और टाइम ले सकते थे, पर ठीक है, प्रयास जो है वो आपके सामने है और हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाए हैं कि आप सबको ये देखकर आश्चर्य हो कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की और एक अच्छी फिल्म बनाई. बाकी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, अच्छा काम करेंगे. थैंक यू. Your
बहुत उत्साहित हूँ मैं, और मुझे लगता है कि बहुत सही स्क्रिप्ट मिली मुझे। कई बार मुझे मौका ऐसा आया था कि मैं हिंदी फिल्म में आऊँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि जो फिल्में मैं कर रहा हूँ उससे अगर कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको अलग लेवल पे कुछ कर पाएँ तो ही जाना ठीक रहेगा। तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली तो मुझे लगा कि करना चाहिए, और रमेश भाई और हमारे इकबाल भाई दोनों लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम लोग इसको पूरी तरह से न्याय करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत हुई। इकबाल जी, आज आप बॉलीवुड डेब्यू जैसे कहा दिनेश जी का और आम्रपाली का, क्या कहना चाहेंगे? आज विजुअल्स हमने जो देखे, आप सो ही नहीं है लगता पूरी रात? हाँ, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ एक्चुअली। मेरा एक्चुअली पता है आपको सारी बात, कल से पता है। दरअसल दिनेश जी और आम्रपाली जी को तो खैर किसी परिचय का मोहताज नहीं है लोग। हिंदी सिनेमा में दिनेश जी कर रहे हैं पहली बार, शायद जी पहली बार कर रहे हैं, डेब्यू कर पूछना ज़रूरी है। हाँ, पहली बार कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनेश जी के साथ काम करने का सपना था मेरा। मेरे फेवरेट कलाकार भी हैं और मैं ये सिनेमा 2 साल से बनाना चाह रहा था। इनके पास स्क्रिप्ट लेके गया, कहानी सुनाई, इन्होंने सोचा करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी इंतज़ार भी करवाया दिनेश जी ने, फिर हाँ भी बोला। फिर हम लोगों ने मिलकर फिल्म को शुरू किया, इस फिल्म को, और ये अच्छी शुरुआत हुई हम लोगों के लिए, और आगे हम लोग बहुत बेहतर सिनेमा बनाएंगे। हिंदी जगत में एक बाहुबली हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं जी, और ख्याल ये प्रोमो देखकर कहीं ना कहीं उसी का आता है। ऐसा क्या पब्लिक देखेगी इसमें जो एक इमेज से हट के दिखाया जाएगा? इस सिनेमा का बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट एक्शन और बेस्ट अदाकार, इन सारी चीज़ों को सिनेमा हिंदी ऑडियंस देखेगी। दिनेश भाई, आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई तो आपके दिमाग में भी गया होगा यार ये बाहुबली लग रही है कहीं ना कहीं। आपने इतनी जल्दी जैसे बता रहे हैं डायरेक्टर साहब 2 साल आपने भी लगा दिए जी करने की वजह, कहीं ना कहीं एक डर आपको भी नहीं लगा कि यार बाहुबली जैसे सामने लोग इमेजिन करते हैं हिंदुस्तान में पब्लिक ये करेगी यार बाहुबली आ रही है? जी, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो फिल्में बनती हैं, अब आप देख लीजिए कि लव के ऊपर, प्यार के ऊपर साल में सैकड़ों फिल्में बन के आती हैं। तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं के समय की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो एक सिनेमा में हम लेके नहीं दिखा सकते। उसके लिए बहुत सारा सिनेमा बनेगा तो हम देख पाएंगे, बता पाएंगे। तो बाहुबली एक साम्राज्य की कहानी थी, एक राजा की कहानी थी। ये जो महाबली वीर योद्धा है, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जो हिंदुस्तान का ही वीर योद्धा है, भले वो काल्पनिक या जैसे काल्पनिक ही है, पर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी और एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा। आपने जो फिल्म की अब उसमें तो देश का नाम, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? क्या? लेकिन देश सेना उसमें तलवार करती दिखी, इसमें आपका कोई एक्शन भी होगा और इसमें करने की आपको क्या वजह, जो हम सबसे पूछेंगे कि करने की वजह होती है कि आपके भी दिमाग में गया होगा बाहुबली, लेकिन क्या इसमें आप एक्शन भी करती हुई? नहीं, एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी इसकी तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। जो अजम्पशंस जो लोगों को थोड़े बहुत हो रहे हैं शायद, उससे बहुत अलग कहानी है। और एज अ परफॉर्मर मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक स्वॉर्ड फाइटिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, और हॉर्स राइडिंग क्लासेस लेने पड़ेंगे मुझे इस फिल्म के लिए, और आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई चैलेंजिंग काम करने मिले तो, और इस फिल्म में मुझे मिला है एंड आई एम फीलिंग लकी दैट आई विल बी डूइंग इट। रमेश जी, आपके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 5 लैंग्वेज में, बॉलीवुड की सबसे बड़ी, दिनेश जी आम्रपाली का डेब्यू बॉलीवुड में, व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा निर्वा जी के साथ काम कर रहा हूँ जो अपने आप में एक स्टार है, साथ में आम्रपाली जी, तो ये पैर ही अपने आप में एक हिट है। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इस फिल्म को इस तरीके प्रेजेंट करूं कि मेरे बैनर का नाम हो, मेरी फिल्म का नाम हो, मेरे डायरेक्टर का नाम हो। और आज आपने देखा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से फिर भी मेरी जो थिंकिंग है शायद निर्वा जी को भी लगा होगा कि नहीं कुछ मेहनत तो हमारी लग रही है। और सब लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हिंदी का डेब्यू है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस प्रोजेक्ट? बिकॉज आपके बाकी प्रोजेक्ट्स एकदम हटते रहेंगे, तो आपको खुद एज एन एक्टर यू फील दैट यू आर नेक्स्ट लेवल? जी,
बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज ए एक्टर मैं हमेशा चाहता था कि मैं हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में काम करूं, और कुछ भाषाओं का ज्ञान मुझे है भी। जैसे मैं बंगाल में पैदा हुआ, तो बंगाल में मेरी पढ़ाई हुई, बंगाली मुझे आती है, मैं बात कर सकता हूं, और मैं तेलुगु भी सीख रहा हूं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कई भाषाओं में काम करूं, और ये इच्छा मेरी तब जगी थी जब मैंने डी रामानायडू सर के साथ में काम किया था। उनकी फिल्म मैंने की थी शिवा। तो मुझे पता चला था कि डी रामानायडू सर ने हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में फिल्म बनाई है। तो वहाँ से मुझे मन में आया कि मैं भी सारी भाषाओं में काम करूँगा। तो एक साथ मुझे 5 भाषाओं में काम करने को मिलेगा, ये सोचा नहीं था, पर मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप कुछ बताएंगे फिल्म की जो यूएसपी है वीएफएक्स के अलावा, और आपने कहा स्क्रीन पे, बट वी सी द रोमांसिंग कैसा? डेफिनेटली रोमांस है सिनेमा में, हीरोइन है, हीरो है, तो डेफिनेटली रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, रोमांस भी होगा। हो सकता है रोमांस के साथ में मतलब जो देवसेना वाली बात उन्होंने की है अभी, वो हीरोइन देवसेना वाला किरदार भी अदा करे। बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है सिनेमा का वो यूएसपी है, एक्शन तो है ही है। एक फिल्म जब आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पार्ट 2 बनाने का पहले ही निर्णय ले लिया जी। तो क्या इस फिल्म का एक्टर का मौजूद है, या पार्ट 2 बनने का भी कोई प्लान अभी से है जो हम मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। आप लोग हिट करवाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। टू भी कंटिन्यू तो नहीं रखा जाएगा? नहीं, ऐसा सस्पेंस कुछ भी नहीं है सिनेमा में, एक डेफिनेट एंड फिल्म हो। रमेश जी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 लैंग्वेजेस है, ऑलरेडी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने 35 साल से किया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तकलीफ नहीं है, और मैं एक बेसिक साउथ से हूँ, तो मुझे साउथ की भी टेंशन नहीं है। अब कोशिश ये है कि मैं अपनी फिल्म को ऐसा प्रेजेंट करूँ कि जिसमें जो पहली बार करने के लिए एक आदमी को उत्साहित होती है, उत्साहितता मेरे में रहे, और निर्वा जी का सपोर्ट है, अमरपाली जी का सपोर्ट है, मेरे डायरेक्टर का सपोर्ट है, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ूँ। आज जो टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है, आगे कहीं ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम ना हो। आज आप मीडिया लोगों को सबको मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है अनफॉर्चुनेटली हो गई, बट आगे कभी ना हो, ऐसा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम पूरी टीम वी आर ऑल वेरी सॉरी कि ऐसे आप लोगों को देखना पड़ा। हमारे फिल्म का फर्स्ट लुक जो भी पहली बार मीडिया के सामने आया वो ऐसा आया, बट वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, और हम लोग एटलीस्ट पहली बार इतना बड़ा काम करें। सो आई जस्ट होप कि आप लोग हमारी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें। बहुत खूबसूरत लग रही है आप महारानी के किरदार में। अच्छा, कड़प्पा कौन होगा और कैसा एक्सपीरियंस है? एक्चुअली ये वही फिल्म नहीं है, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। इसमें हमारे विलेन का मोटिव अलग है, ये अलग कहानी है। सो इसमें जैसे हमारे सुशील सिंह जी एक्टर, वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। वो और दिनेश जी जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं स्क्रीन पे या होंगे, तो लोगों को देख के लगेगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है। दिनेश जी, वैशाली नगर की बात हो रही है, तो ये कहाँ का कहानी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे वैशाली नगर? पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, और कहानी के बारे में पूरा डिटेल आपको तो तब मिलेगा जब फिल्म बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी जो लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं ऐसा कि ये बाहुबली की तरह फिल्म होगी या कैसी फिल्म होगी, तो अभी थोड़ा अंदाज लगाते रहें। जब फिल्म बन के आएगी तो पता चलेगा कि ये क्या कहानी है और कितनी अलग कहानी है, और इकबाल जी ने क्या सोच के इसको बनाया है। कब तक ये शूटिंग शुरू होने वाला है, और शूटिंग तो शुरू है, कब तक शूटिंग होगा? ये फिल्म हम लोग लेके आएंगे 2019 में आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय हमें शूट करने में लगेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि हमें 100 दिन चाहिए आपका। तो मैंने भी 3-4 महीने तक की जो फिल्मों का हमारा रहता है वो हमने रोक के इनको ही दिया हुआ है, तो काफ़ी समय उस शूट में लगेगा। उसके बाद चूँकि इस फिल्म में VFX का काम बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, तो मुझे लगता है 2019 में ही हम लेके आ पाएंगे इस फिल्म। दिनेश जी, कुछ चैलेंजेस शूट करते हुए, कोई इंसिडेंट जो आप बताएंगे अभी तक जितना आपने शूट किया आपको लगे? आम्रपाली, आपसे भी जानना चाहेंगे।
देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि जब आप किसी जानवर के साथ शूट कर रहे होते हैं। घोड़ा जो है, वही जब मैं पहले दिन गया सेट पे तो मैं सर से कह रहा था कि आज यहाँ घोड़ों को देख के मुझे नाना पाटेकर जी की याद आ रही है वेलकम के। मैं तो रुक रहा हूँ, ये नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये है कि जब हम घोड़ों के साथ में शूट करते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक ही शॉट को कई बार देना पड़ता है। ऐसे ही 5 भाषाओं में है तो 5 टेक तो ऐसे ही देना है। उसके बाद भी अगर कभी घोड़े का मन नहीं हुआ टेक देने का तो फिर कई बार हमको रीटेक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, चूँकि फिल्म इतनी अच्छी बन रही है कि हम लोग तैयार रहते हैं उसके लिए भी, और काफ़ी मेहनत चल रही है। थैंक यू। राजू जी को भी साथ ले लीजिए। भाषा में फिल्म में भी आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बहुत बधाई हो सबसे पहले सबको। योद्धा महाबली फिल्म 5 भाषाओं में बन रही है। हम एक भाषा में नहीं बना पाते हैं प्रॉपरली, और वो 5 भाषाओं में बना है, तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी यूनिट को, पूरी टीम को। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो दिनेश जी को, आम्रपाली जी को, और अदर जो भी स्टार कास्ट है, अमरीश, अयाज, सिकंदर जी, नागेश जी, जो नाम याद आते जा रहे हैं, सोम, सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई हो। डायरेक्टर इकबाल बख्श जी को बहुत बहुत बधाई हो। फिल्म के जो प्रोड्यूसर है रमेश व्यास जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह का उन्होंने कदम उठाया है, और आई एम श्योर कि वो अपने इस स्टेप में कारागार होंगे। ये फिल्म ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी, और मुझे लगता है कि हमारे पूरी जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, उनको पसंद आएगी। इतना बड़ा प्लान करना, कदम उठाना कितना मुश्किल काम है कि 5 लैंग्वेज में एक फिल्म रिलीज करना। साबिन भोजपुरी का इतना बड़ा कदम है, तो इसके बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 5 भाषाओं में उसको शूट कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग भाषा का असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, और वो पूरा डायलॉग्स अलग चाहिए। एक शॉट को आपको 5 बार शूट करना पड़ता है, और भोजपुरी के एक्टर्स को लेके इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप है। आई एम श्योर, क्योंकि दिनेश जी एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, और कुछ सोच समझ के ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया होगा, और आई एम श्योर ये फिल्म बहुत ही सफल फिल्म कहलाएगी। जिस तरह से ट्रेलर देखा हमने, सारा इफेक्ट यूज़ किया गया फिल्म के अंदर, तो इस तरह की फिल्में बनना कितना मुश्किल काम है, और आने वाले टाइम पे क्या ऐसी फिल्में भोजपुरी कोई स्टार को लेकर बनाई जाएगी? ऑफकोर्स मुश्किल होती है VFX, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत खर्चीला एक्सपेंसिव होता है VFX किसी भी फिल्म के लिए। जैसे कि हम लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी थी, तो आपने देखा ही था कि उसका स्तर कितना बड़ा था। आई एम श्योर ये फिल्म भी पूरी जब रेडी हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी, वो इस कहीं भी बाहुबली से कम नहीं दिखेगी। और ऑफकोर्स भोजपुरी के एक्टर्स ऐसा नहीं है किसी भी कम है, उल्टा मुझे लगता है ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा सफिशिएंट है हर काम करने के लिए, क्योंकि भोजपुरी में कोई भी गाना या कोई भी फाइट सीक्वेंस 3 या 4 दिन में नहीं होता है, हमें 1 दिन में या 2 दिन में ही सब करना पड़ता है, और हिंदी में बहुत समय मिलता है सब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी एक्टर्स जो है वो ज़्यादा मंझे हुए कलाकार होंगे एनी अदर एक्टर। आजकल आप बिजी रह रही हैं अपनी फिल्मों को लेकर, तो फिल्मों से कितना लाभ है आने वाली नहीं, मैं बहुत जल्दी फिल्म्स कर रही हूँ, और थोड़ा ब्रेक मैंने लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि किसी अच्छी चीज़ के लिए ब्रेक लिया है, और आई थिंक मार्च के बाद आप कंटिन्यू मुझे शूटिंग करते हुए ही देखेंगे। मैं एक्चुअली नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एक तमिल फिल्म कर रही हूँ और एक हिंदी फिल्म कर रही हूँ, और उसके बाद आई थिंक मई में मेरा सीरियल भी स्टार्ट होने वाला, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। होली के लिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का जो जीवन है वो रंगमय हो, बहुत सारे रंगों से आप अपने जीवन में रहें, खुशियाँ ही रहें। मैं जहाँ तक चाहती हूँ कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही हो, और बस सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और प्लीज़ प्ले सेफ होली, किसी को भी काला पेंट मत लगाइए, एग्स मत फेंकिए, एकदम सेफ और रंगों की होली खेलिए, और सबके साथ खुशियाँ और प्यार बांटिए। हैप्पी होली। भाई मेरा तो एक ही वैलेंटाइन है, और मुझे लगता है वो सारी दुनिया को पता है, और उन्हीं के साथ बनाऊंगी। और मैं हूँ। ये अवधेश जी उधर से चिल्ला रहे हैं कि मैं हूँ। अवधेश जी, आप मेरे वैलेंटाइन कैसे हो सकते हैं? इनका वैलेंटाइन
हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं हूँ, हाँ होना, हाँ होना। दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे, लेकिन वैलेंटाइन तो वैलेंटाइन में भी तो दोस्ती होते हैं ना, हाँ होते हैं ना दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती का ही जो छोटा नाम होता है वो प्यार होता है। बिल्कुल। और आई थिंक ही इज़ अ मैन। मेरे साथ मेरी फर्स्ट फिल्म से है और मेरे गुरु गाइड, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं फट इनको फ़ोन लगाती हूँ कहाँ पे इंसान शूटिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं मिलूंगा, और बॉम्बे पहुँच जाते तो भी नहीं मिलते। ये दोस्ती है। वैलेंटाइन पे मिलेंगे। चलिए वैलेंटाइन पे मिलेंगे। सर क्या कहेंगे फिल्म को इतना बड़ा कदम उठाना, 5 लैंग्वेज में? हाँ ये बहुत सराहनीय कदम है। ऊपर वाले ने अगर चाहा तो ये कदम इतनी मजबूत कदम बन जाए हमारी इंडस्ट्री के लिए, बड़े प्राउड की बात है। बस सार्थक हो जाए और मुझे उम्मीद है कि सार्थक हो जाएगी। शुरुआत अच्छी है तो आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही है और बहुत अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी लेविश फिल्म बनाया है इन्होंने। एक अदर इंडस्ट्री में भी ये चर्चा होनी चाहिए कि भोजपुरी में भी इतनी महंगी और बड़ी और लेविश फिल्में बनती हैं, तो ये हम सब के लिए बड़े प्राउड की बात है। बस लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे इस इंडस्ट्री को। 2-3 सालों में जो पोस्टर का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ा है उसका किस तरह से देखना है? मैं तो देख रहा हूँ कि जब से मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव शुरू किया तब से क्रेज़ ज़्यादा बढ़ने लगा। नहीं, भोजपुरी दिन ब दिन अपने रफ्तार से बहुत तेज़ चल रही है और ये तेज़ चलना ही बहुत ज़रूरी है। अभी एक परिपक्व इंडस्ट्री बनती चली जा रही है, जहाँ परिपक्वता आती है, परिपक्व लोग आते हैं, चाहे कलाकार हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, तो इंडस्ट्री में अपने आप एक बदलाव आता है और ये बदलाव अच्छे के लिए होता है और बहुत प्रभावित होता है। दिनेश जी की पटना से पाकिस्तान में बहुत मजा आया है, जैसे कि इस फिल्म को हम देखें तो ये हिंदी में है और हिंदी थिएटर में कितना धमाल मचाने वाली है फिल्म, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत कमाल की। देखिए हर फिल्म अपना भविष्य लेकर के आती है और इस फिल्म का भविष्य हिंदी में क्या है या तेलुगु में क्या है या तमिल में क्या है हम ये नहीं जानते। हम इसको भोजपुरी नज़रिए से देख रहे हैं। भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है और नई चीज़ है। एक तरफ बाहुबली बनी थी और हमारे यहाँ महाबली बन रही है। उसमें भी दिनेश जैसे सुपरस्टार को लेकर के, तो ये निश्चित तौर पे अच्छी बात है। मैं अभी बच्चा गर्व में है, गर्व में बहुत ज़्यादा पहले से कुछ उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इतनी उम्मीद लगानी चाहिए कि अच्छा बच्चा है, अच्छा गर्व हुआ है। और बेस्ट विशेज़ हैं सबको। बेस्ट विशेज़ हैं, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, हम तमाम इंडस्ट्री वालों की दुआएं हैं इस महाबली के साथ। मेरी ये भी फिल्म अभी जो रिलीज है, जो अभी बिल्कुल नज़दीकी रिलीज है, उसका नाम है डमरू। डमरू एक मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि मेहंदी लगा के रखना से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया था, पॉजिटिविटी आई थी कैरेक्टर में भी, मेरे में भी। ये तिलक भी उसी का परिणाम है कि जब से थोड़ा सा बदलाव आया मैंने तिलक साधु संत हो गए हैं। मैंने हाँ बिल्कुल, एक रावण का रोल करता था, अब कुछ अच्छे रोल भी करता हूँ। अभी डमरू में एक भगवान शंकर और भक्त की कहानी है और वो फिल्म बड़ी मेरे उम्मीद पे सबसे आगे अभी वही फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी उम्मीद को पूरी करे वो दर्शकों की उम्मीद को भी ज़रूर पूरी करेगी। होली की शुभकामनाएं मैं तमाम अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्रेमियों को देना चाहता हूँ। हाँ प्रेमी हो, तमाम हमारे दर्शक हमारे प्रेमी हैं। उसमें कुछ लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, सब हैं और होली का हुड़दंग है, तो इसमें प्रेमी ही बोलना, प्रेमी प्रेमिका सब के लिए मेरी तरफ से होली का संदेश है कि खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। रंगों का त्यौहार ऐसा ना बना दें कि बदरंग हो जाए, रंगों में रंग ही खेलें, बाकी कुछ ना खेलें। बस मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली में ही आपकी फिल्म सुनो ससुर जी की रिलीज होने की संभावना है, क्या कहेंगे उसके लिए? सुनो ससुर जी में ससुर जी मैं ही हूँ, तो मैं बोलूँगा सुनो हमारे दर्शक जी कि ये फिल्म देखें। बड़ी अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म है। उसमें गोलू एक एक्टर है जो सबका चहेता है, निरहुआ रिक्शा वाला से, वो इसमें हीरो है। ससुर का किरदार मैं कर रहा हूँ। मुझे किस तरह से वो हीरो परेशान करता है पूरी फिल्म में। बड़ा इंटरटेनिंग फिल्म है वो, सुनो ससुर जी बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है और होली पे ही रिलीज है वो, तो देखें होली के हुड़दंग के साथ उस फिल्म का भी मजा लें। यही सब जी के साथ आप पहली फिल्म कर रहे हैं, किनके साथ? ऋषभ, गोलू। हाँ, क्या कहना चाहेंगे गोलू जी? पहली फिल्म तो नहीं है? नहीं, गोलू के साथ पहली फिल्म है मेरी। अच्छा। बहुत प्यारा लड़का है वो, बहुत कम उम्र से ही उसके अंदर जो पोटेंशियल था तो दर्शकों ने देख लिया। निरहुआ रिक्शा वाला से ही एक शैतान लड़के के रूप में आया, सबकी नज़र का चहेता बन गया वो। और गोलू अब मैच्योर हो चुका है, पूरी तरह मैच्योर नहीं कह सकता हूँ, उम्र में मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अभिनय में बहुत परिपक्व हो चुका है। बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा संस्कारी लड़का है और नए लड़कों का आना हमारी इंडस्ट्री में बहुत आवश्यक है, तो वो अच्छा भविष्य लेकर के आ सकता है इंडस्ट्री का। मेरी यही दुआएं हैं उसके साथ, लड़के के साथ। इस फिल्म के माध्यम से कोई मैसेज जाने वाला है? गोलू
सुनो ससुर जी के माध्यम से मैसेज क्या जाएगा? एंटरटेनमेंट के अलावा क्या मैसेज जाएगा? भाई फिल्म में एंटरटेन हो जाओ, मैसेज तो खुश रहिए, होली के अवसर पे खुश रहिए। आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत खुश हूँ और ये सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज भोजपुरी जगत के लिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि भोजपुरी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी, इतनी लैविश फिल्म बन रही है। और इसके भोजपुरी के अलावा ये 4 और अलग भाषाओं में बन रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली। तो नो डाउट बहुत खुशी की बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है। तो जाहिर सी बात है जब फिल्में बड़ी बनेंगी, अच्छी बनेगी, तो जो है हमारा फिल्म का जो है, इंडस्ट्री का जो है विस्तार होगा। जब विस्तार होगा तो सभी का भला होगा, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो इंटायर टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, आगे अंदर भी मैंने इंटरव्यू किया, फंबल किए जा रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म का मुहूर्त है। तो हम सब इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक कह सकते हैं नई शुरुआत है इंडस्ट्री की। जी ये बहुत अलग ही फिल्म है। बताया नहीं मैं कि भोजपुरी का ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसी फिल्म जो है हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है। भोजपुरी में पहली फिल्म है जो हिस्ट्री के ऊपर बन रही है, बाहुबली फिल्म बन रही है। तो इकबाल जी ने हमेशा ही डिफरेंट फिल्म बनाया है, अच्छे टेक्नीशियन हैं और काफ़ी मेहनत का इंसान है और काफ़ी हर चीज़, हर शॉट, हर सीन के लिए बहुत मतलब लग के डाउन टू अर्थ भी हैं और वो काम के लिए बिल्कुल हम्बल रहते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और दिनेश जी है, अमरपाली जी हैं और मैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर रमेश व्यास जी हैं, मैं उनको जो है सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना साहस किया, इतना हिम्मत किया। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक साथ 5 भाषाओं में एक फिल्म को बनाना ये कोई मतलब आसान काम नहीं है, ये बहुत साहस का काम है, बहुत बड़ा काम है और उन्होंने किया। और मेरी दुआ है कि जिस मन से, जिस वो शिद्दत से उन्होंने सोचा फिल्म बनाने का सोचा, अल्लाह उनकी जो है मनोकामना को पूरी करे और फिल्म बहुत अच्छी बने और दर्शक इसे पसंद करें। और ये कमाल की फिल्म जो बनाई जा रही है, इसका अभी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मैं अभी ही जानती हूँ इंडस्ट्री को, काफ़ी ग्रो कर रही है अपनी इंडस्ट्री। और रमेश व्यास जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी फिल्म के भी वही प्रोड्यूसर है, लोहा पहलवान, और डायरेक्टर इकबाल बख्श, मैंने उनसे ही फिल्म में डेब्यू लिया है इस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, बस बेस्ट विशेष दूँगी और क्या। आप अपने किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा कि अभी फिल्म का जो है ये फर्स्ट लुक जो है लॉन्च हुआ है और अभी फिल्म का जो है शूट भी बाकी है। तो यही कहूँगा कि फिल्म में जो है आप लोगों ने जो है बाहुबली देखा होगा, उसमें जो विलन का कैरेक्टर जो है कितना हैवी था, पावरफुल था। नो डाउट उसी टाइप का मेरा कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है और हमेशा से ही मैंने जो है अच्छा काम किया है। इस फिल्म में भी बहुत पावरफुल रोल है, इतना ही कहूँगा। और बस आप लोग ऐसे ही मुझे जो है दुआ, आशीर्वाद, प्यार देते रहिए कि मैं अच्छा काम करता रहूं और मेरे काम को जो हमारे ऑडियंस, हमारी जनता प्यार करते रहे। पायल जी और अयाज जी, होली की शुभकामनाएं दर्शकों के लिए। दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो है बहुत ही जो है पवित्र त्यौहार है और इसको आप लोग अच्छे तरह मनाएं। इसको जो है ये एक कलरफुल, एक रंगीन त्यौहार है, तो इसको रंगीन ही करें, न कि जो है दूसरे के ऊपर कितने लोग होते हैं कीचड़ फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, है ना, उठा के भी पटक देते हैं, नाली में पटक देते हैं। तो मैं आप दर्शकों से, आप जो है भारत के नागरिक और सभी देशवासियों से यही अपील करूँगा कि इसको प्यार से मनाएं और जो है प्यार से मनाएं। मैं भी अपने दर्शकों को, भोजपुरी इंडस्ट्री से उसके बाहर के दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी एंड सेफ होली। फिर सब पकड़ा दिया 10 होना चाहिए। रुक जा भाई, विजुअल चल रहा है। होली की क्या शुभकामनाएं होंगी और उसके बाद आपकी एक अपनी
सबसे पहले नमस्कार, मैं राजू सिंह माही। आज यहाँ महाबली का टीजर लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म बन रही है और टीजर काफ़ी मतलब लैविश बना हुआ है। भोजपुरी में पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बनी है, टीजर बना है और फिल्म बन रही है और काफ़ी अच्छा प्रयास है हमारे रमेश व्यास जी का और डायरेक्टर इकबाल बख्श जी का, और दिनेश जी तो इसमें कमाल का काम किए हैं। सर बात करें सिनेमा की, आज भोजपुरी जगत का सिनेमा कहाँ आप देखते हैं? जैसे कल के दौर में बहुत बदनाम था, बहुत रुसवाइयाँ हुई सिनेमा की, बट आज जो सिनेमा दिखाया जा रहा है 5-5 भाषाओं में सिनेमा को लॉन्च किया जा रहा है, इस पर आपके क्या रिएक्शन? ये देखिए जी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भोजपुरी बहुत ही सुधार हो रहा है। पहले क्या बनती थी, अब क्या बन रहा है। पहले हमारा सिनेमा 60 से 70 लाख में था, अब 2-2, 3-3 करोड़, 20 करोड़ तक बन रहे हैं। ये तो सुधार की मतलब कहा जा सकता है इसको, सिनेमा को। आपका कोई सिनेमा ऐसा जो आपको पसंद हो या आप किसी ऐसे स्टार के साथ काम करना चाहते हैं? भाई मुझे तो अपनी सारी फिल्में पसंद आएंगी। फिलहाल गदर 2 मेरी आ रही है, 26 को रिलीज़ थी पर सेंसर ने रोक दिया, लेकिन शायद इस महीने मतलब फरवरी लास्ट तक रिलीज़ हो जाए। किस तरह का किरदार है गदर 2 में? गदर 2 में मैं एक सुल्तान का किरदार किया हूँ जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आला कमान है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। आप लोग देखें, गदर 1 में भी मैं था, सेकंड में देखिए आप लोग कैसा लगा। दर्शकों से क्या कहें होली और आपकी होली अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं, बहुत अच्छा त्यौहार है। जम के होली खेलें, सेफ खेलें और सबके साथ खेलें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। कैसे बॉलीवुड में एंट्री की और आज जो जिस सिनेमा को देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को और मीडिया कर्मी को सबको प्रणाम। मेरा नाम है लोटा तिवारी, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। आपकी एक्टिंग की बात करें, आप बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे थे, तो किस तरह से सीखी आपने ये चीज़ और बॉलीवुड में कैसे एंट्री? जी, मैं भारतीय नाट्य अकेडमी से कुछ टिप्स सीखे और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने एक कोर्स किया था मास कम्युनिकेशन। वहाँ पर भी कुछ टिप्स मुझे मेरे गुरु थे कुलश्रेष्ठ मोहन जी, जिसको बाबा कहते हैं, लखनऊ में, उनसे सीखा और अच्छा आप लोगों से। सीरियल की बात करें, कौन-कौन सीरियल आप कर रहे हैं? मेरा सीरियल तो अभी लेटेस्ट में आ रहा है जीजा जी छत पे है, सोनी सब पे, जिसमें मेरा पहलवान का कैरेक्टर है, और भाभी जी घर में है, वो भी मैं करता हूँ। अभी एक सीरियल और आ रहा है परमा अवतार श्री कृष्णा, जिसमें मैं भगवान कुबेर बना हूँ। कॉमेडी अब दरअसल माहौल नहीं है और महावीर योद्धा महाबली के बहुत अच्छा अभी तो एक्सपीरियंस ले भी रहा हूँ। कौन सा अभी उम्र बीत गई है, अभी ले भी रहा हूँ। होली के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्यारे दर्शकों के लिए, हमारे मीडिया कर्मी भाइयों के लिए और हमारे चहेतों के लिए। लेकिन हाँ, कीचड़ से और केमिकल कलर ना लगाएं किसी को, ये नुकसान करता है। प्यार से खेलें, गुझिया खिला के खेलें, मिठाई खिलाएं, रसगुल्ला खिलाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.